Good morning, students. Welcome to virtual class. Today, I am going to teach you about conditional sentences, isn't it? First of all, we should know what are conditional sentences. Conditional sentences are those sentences which inform us about a certain condition. जो हमें कोई condition बताते हैं and that condition affect our action. These are conditional sentences. जिस उस condition से हमारा action affect करता है. That is a conditional sentence. All conditional sentences are having two clauses. And first clause is called if clause and another clause is called the main clause. जैसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस सेंटेंस में कंडीशन होती है उसे तो हम इफ क्लॉज को कहते हैं एंड सेकंड क्लॉज इज कॉल्ड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट क्लॉज. देखिए एग्जांपल, इफ यू बॉयल वाटर, this clause if you boil water, this is called if clause because if is there. And second is called main clause or you may say the consequence of this clause. Consequence means इसी का part or main clause means which is complete in itself, which is having subject and verb and object, which is having its complete sense, that is main clause. And this is called dependent clause, isn't it? If you grow now, in this sentence if you grow now, this is a if clause, okay? Or you may say dependent clause. Dependent clause समझते हो? That is not complete itself. And this clause you may find them in the mall. This is called main clause or you may say consequence of this clause. इसी clause का दूसरा part. Isn't it clear? Conditional sentences are those sentences which affect our action and they are having two clause. First is clause main clause and second is clause if clause. Isn't it? Let us come to know about the types of conditional sentences. There are basically four types of conditional sentences. First is zero conditional. Second is first conditional or you may say type 1. And another is second conditional sentences, you may say type 2. And the next is third conditional sentences, you may say type 3. Let us come to know about these conditional sentences in detail. Let us come to know about zero conditional sentences. These sentences describes the general truths or scientific facts. You know, scientific facts which cannot be changed. The time is now and always. Time is always the same, whether it is a past tense, future or present. Time is always the same here. And the situation is real and possible. Actually, these sentences make statements that remain true all the time. These sentences are used to describe the general truths or the scientific facts. Let us have some examples. Just see the sentence. If you heat ice, it melts. Just imagine if you heat ice. अगर आप ice को heat करते हैं, गर्म करते हैं, it will definitely melt. ऐसा नहीं है कि उसको हमने गर्म किया और वो जम गई, become more harder. No, it will melt. It melts. It is a scientific facts. Okay. If you freeze water, it becomes solid. Everybody knows this fact that यदि हम पानी को freeze करते हैं, जमाते हैं, तो वो solid ही होगा. It will not melt. That's why I have used a present tense, यानी now and always. Situation is real. Yes, real कि possible है. अगर हम ice को heat करेंगे, वो definitely melt होगी. If we freeze the water, it will definitely become solid. Next example, plants die if they do not get water. It is only also an example of scientific facts that plant को अगर हम मर जाएंगे यदि हम उन्हें पानी नहीं देंगे. The condition is possible and real, and these examples describes as the general truth. So what is the rule of these conditional sentences? The rule is
इफ क्लॉज में हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस एंड जो मेन क्लॉज है इन दैट क्लॉज वी ऑल्सो यूज सिंपल प्रेजेंट. जस्ट देखते हैं. If you heat water, here you is plural number, that's why I have used here heat, not heats. It melts. S is there, it means simple present with singular number. Second example, you is again here, so that's why freeze is there. And in the main clause becomes. S is there, which is showing that it is simple present tense. Third example, plants, again plural number is there, die. It is the main clause. Plants die because this sentence is complete in itself. If they do not get water, do is showing that it is plural number and it is simple present tense. आपने अगर टेंस पढ़े होंगे तो उसमें सिंपल इनडेफिनिट टेंस में होता है कि व्हेन देयर इज अ साइंटिफिक डेथ और यूनिवर्सल ट्रुथ इज देयर वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. कि जहां पर यूनिवर्सल ट्रुथ हो, जर्नल ट्रुथ हो, साइंटिफिक फैक्ट्स हो, वहां पर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड द जीरो कंडीशनल. आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं जहां पे कोई कंडीशन ही नहीं है कि वो होना ही होना, इट विल हैपन. ओके, नाउ लेट अस कम टू नो अबाउट another. Let us come to know next conditional sentences, that is first conditional. First conditional sentences are those sentences which describes the condition that are probable or likely to be fulfilled. यानी कि जो हो सकती है, possibility है उनमें. Used to refer to the present or future where the situation is real. जहाँ पे situation real है, it means they are likely to happen in future. वो future में हो सकती हैं. Let us make clear through some examples. देखिए, if I am hungry, okay, this is if clause. If I am hungry is a if clause. And another is the condition is that कि if I am hungry, मैं आपको condition दी है कि मैं अगर भूखा हूं या भूखी हूं तो I will get something to eat. यानी definitely मैं कुछ खाऊंगी ही. अगर हमें भूख लगती है हम कुछ खाएंगे. It means the situation is real. Okay. Now come to know, let us come to know second example. If she invites me, if she invites me, I will go. It is, this situation is also probable. Situation is real. कि यदि वो मुझे invite करती है, okay, मैं चली जाऊंगी. यानी कि likely to be fulfilled. ऐसा possible है कि अगर कोई मुझे invite करेगा तो हम उस पार्टी में चले जाएंगे. Now come to know another example. If it rains, यदि बारिश होती है, I will not go to the park. मैं पार्क नहीं जाऊंगी. It means this condition is also real. This is also a possible condition. I think it is clear कि कोई सेंटेंस ऐसा जिसमें कंडीशन ऐसी है कि उसका आंसर पॉसिबिलिटी हो सकती है उसके आंसर में, वो प्रोबेबल है. तो what is the rule of this conditional sentence? Rule is, in the if clause we use simple present in if clause, and in the main clause we use will. It means simple future. Just see the example. If I am hungry, it is if clause, so I have used here simple present. देखिए invites में s आ रहा है, rains में भी if आ रहा है. Now second, this is the main clause. I will get something to eat. Here will आ रहा है, it means simple future. Again, I will go, will, simple future. I will not go to the park. Again, simple future is there. Is it clear to all? Now, let us come to know another conditional sentences. And one more thing, that in this conditional sentences, sometimes we can use modal also. Modals, जैसे आप word, should, can, could be, इसमें हम use कर सकते हैं. Isn't it? Now come to the next slide. Let us come to know about second conditional sentences. Second conditional sentences which describes unlikely or hypothetical conditions. Hypothetical condition, total imaginary conditions are there and their probable result. Probable result कि that is not possible.
इमेजिनरी सिचुएशन इज देयर, टोटल हम इमेजिन कर सकते हैं बस इसमें। जैसे मैं आपकी क्लास में खड़ी होकर बोलूं कि इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं चिड़िया होती। आप कहो इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वी आर जस्ट इमेजिन, यदि मैं तुम्हारी जगह होती, कि वी कैन ओनली इमेजिन हियर। जस्ट मेक क्लियर दिस सिचुएशन through some examples. If it rained, you would get wet. I am saying just अगर बारिश होती, पास्ट की बात कर रही हूं मैं, यदि बारिश होती you would get wet, आप गीले हो जाते। आप सोचिए जब बारिश हुई ही नहीं है तो आप गीले नहीं हो सकते हैं। इट मीन्स टोटल इमेजिन कर रही हूं, अगर बारिश हुई होती ना तो आप गीले होते। प्रेजेंट की बात करूं, प्रेजेंट में खड़ी होकर आपको ये बता रही हूँ बच्चों से, मेरा पीरियड है आपकी क्लास में और बोल रही हूँ कि बेटा अगर बारिश होती ना तो मैं स्कूल नहीं आती। यू अंडरस्टैंड कि वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर टाइम। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ शी फॉल, यदि वो गिर जाती, शी वुड हर्ट हरसेल्फ। आई एम जस्ट सेइंग टू यू कि मैं आपको प्रेजेंट में खड़े होकर बता रही हूँ कि यदि वो गिरती तो वो के चोट लग जाती। आप सोचिए वो गिरी नहीं है तो चोट कहां से लगेगी, कि टोटल इमेजिन कर रही हूं मैं सिर्फ कि अगर ऐसा होता तो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता। मैं इमेजिन कंडीशन करके बता रही हूँ, इमेजिन कर रही हूँ कि यदि मैं तुम्हारी जगह होती या होता, आई वुड ड्राइव मोर केयरफुली इन द रेन। मैं रेन में बहुत ही केयरफुली ड्राइव करती। जस्ट थिंक कि यदि मैं तुम्हारी जगह थी ही नहीं तो कैसे ड्राइव कर सकती हूँ, नहीं कर सकते ना। इट मीन्स टोटल हाइपोथेटिकल कंडीशन इज देयर। वन मोर एग्जाम्पल, if she had a piece of land, she could grow some more crops. यदि उसके पास एक लैंड का पीस होता, जमीन का टुकड़ा होता, वो और ज्यादा क्रॉप्स उगा सकती थी। यानी कि सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं हम, अगर होता तो, यदि मैं चिड़िया होती तो, मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो, यदि मुझे गॉड मिलते, इफ आई फाउंड ए ट्रेजर आई वुड बाय अ बंगलो। मेरे पास अगर बहुत बड़ा खजाना मिलता ना तो मैं एक बंगला खरीदती। फ्यूचर की बात कर रही हूं मैं। यानी हम इसमें, आप ध्यान रखिए बेटा इस चीज को कि आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। मैं प्रेजेंट में खड़ी हूं और आपको बता रही हूं कि बेटा अगर मैं प्रिंसिपल होती और तो मैं ऐसा करती, आपके एग्जाम ही नहीं करवाती। यानी फ्यूचर की बात की है मैंने, अगर मैं पास्ट में प्रिंसिपल होती तो मैं अब आपके एग्जाम नहीं करवाती। तो व्हाट इज द रूल ऑफ दिस सिचुएशन? Rule is, in the if clause we use simple past and in the main clause we use would plus first form of verb, isn't it? In the if clause में हम यूज करते हैं simple past और main clause में would के साथ verb की first form। just make it clear। if it rained, देखिए past है, simple past में second form यूज होती है। if you remember, रेन की सेकंड फॉर्म की है। बारिश होती, पास्ट की बात है, बारिश होती पास्ट में बताया मैंने, यू वुड गेट वेट, आप गीले हो जाते, वुड। इफ शी फॉल, गिर जाती। इफ आई वर यू, बेटा एक चीज ध्यान देखिए, मैंने कहीं पर इसमें हैड का यूज किया है। यहाँ पे हैड है, यहाँ पे वर है और यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो इसको ध्यान रखिए, जैसे रेन है, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। व्हेन एक्शन इज देयर, जब हम एक्शन यूज करते हैं वी यूज सेकेंड फॉर्म, और जब हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं कि तो देयर वी यूज पॉसिबिलिटी है, वी यूज वर्ब। एंड जब पोजेशन होता है, यहाँ पे पोजेशन शो कर रहा है, यदि होता, मेरे पास होता, तो वी हैव यूज द सेकेंड फॉर्म ऑफ हैज। ओके, हैज की सेकेंड फॉर्म क्या है, हैड, isn't it? In the if clause we use simple past and in the main clause we use would plus first form of verb. Now come to the next conditional sentences. Now come to the next conditional sentences, that is third conditional or type 3. These sentences express an impossible condition in the past and probable result in the past. It means इसमें जो कंडीशन होती है वो कंडीशन भी पास्ट की होती है और जो रिजल्ट भी उसका पास्ट में होता है। एक्चुअली इट टॉक्स अबाउट अ कंडीशन दैट डिड नॉट हैपन इन द पास्ट, जो पास्ट में हुई ही नहीं है।
इट्स ओनली इमेजिनरी कॉन्सिक्वेंस, केवल हम इमेजिनरी बता रहे हैं, केवल हम इमेजिन कर सकते हैं इसको। टोटल इम्पॉसिबल एंड टोटल हाइपोथेटिकल और अनरियल कंडीशन इज देयर। इस कंडीशन को समझने के लिए आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, प्लीज लिसन। सपोज आई एम एट माई होम एंड माई फ्रेंड्स आर गोइंग फॉर अ पार्टी। ठीक है, दे हैड गॉन टू द पार्टी, और वापस आके मुझे बताते हैं वी इंजॉयड अ लॉट इन दैट पार्टी। अब नेक्स्ट डे मैं अपनी सिस्टर को बोल रही हूँ, इफ आई हैड गॉन टू द पार्टी, यदि मैं भी पार्टी में जाती तो आई वुड हैव ऑल्सो इंजॉयड द पार्टी। यानी मेरा जो रिजल्ट है वो पास्ट का ये कि अगर मैं भी पार्टी में जाती ना तो मैं भी बहुत इंजॉय किया होता, पास्ट में बहुत इंजॉय करती, मैं बता रही हूँ मेरी फ्रेंड सिस्टर को। तो इट मीन्स आप डिफरेंस समझिए। इन द सेकेंड कंडीशनल द सिचुएशन इज इमेजिनरी, इन दिस सिचुएशन इज ऑल्सो हाइपोथेटिकल। ओके, इन सेकेंड कंडीशनल द रिजल्ट इज इन फ्यूचर, हम उसमें वुड का यूज करते हैं। एंड इन दिस कंडीशन थर्ड में जो हमारा रिजल्ट है वो भी पास्ट में, देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है पास्ट हियर। दोनों में कंडीशन पास्ट की होती है, सेकंड और थर्ड में कंडीशन पास्ट की है, दोनों में ही हाइपोथेटिकल होती है, इम्पॉसिबल कंडीशन होती है। बट द डिफरेंस इज देयर, इन द सेकंड कंडीशनल we use the probable result in future, and in third conditional we use the probable result in the past। हमारा जो रिजल्ट है वो इसमें पास्ट का होता है। लेट अस मेक इट मोर क्लियर थ्रू सम एग्जांपल्स। ओके, इफ आई हैड वन अ लॉटरी, यदि मैं एक लॉटरी जीतती, मैं बता रही हूँ आज, सोचो कोई रिजल्ट आपकी मेरे फ्रेंड्स ने कोई लॉटरी का टिकट खरीदा था और उनका लॉटरी का रिजल्ट निकला, उन्हें बहुत सारा पैसा मिला। तो मैं आज आपकी क्लास लेते हुए आपसे बात कर रही हूँ बच्चों, इफ आई हैड वन अ लॉटरी, यदि मैं भी कोई लॉटरी जीतती ना, आई वुड हैव बॉट अ कार, मैं भी एक कार ले लेती। पास्ट की बात बता रही हूँ मैं आज आपको कि यदि मैं भी लॉटरी जीतती। ठीक है, देखिए आप, हमारी जो कंडीशन है सिचुएशन इफ क्लॉज में हमने हैड यूज किया है इन द पास्ट। ओके, इम्पॉसिबल कंडीशन इन द पास्ट, जो हमारा इफ क्लॉज है कंडीशन हमारी पास्ट की है कि लॉटरी जीतती, और उसका प्रोबेबल जो रिजल्ट है वो भी पास्ट का है, वुड हैव एंड द बॉट, वुड हैव प्लस बॉट अ कार, इजंट इट, मैं पास्ट की बात कर रही हूँ। लेट अस हैव वन मोर एग्जांपल, इफ आई हैड सीन माइकल एट द पार्टी, इसमें आप ध्यान रखिए पूरा टोटल रिलेशन कनेक्शन हमारा पास्ट से होता है, द टाइम इन दिस कंडीशन इज पास्ट। ओके, आप सपोज कीजिए मेरे कुछ फ्रेंड्स आए, उन्होंने बताया हम माइकल से मिले थे पार्टी में, तो मैं बता रही हूँ अपने नेक्स्ट डे कि यदि मैं भी माइकल से पार्टी में मैंने माइकल को देखा होता, इफ आई हैड सीन माइकल इन द पार्टी आई वुड हैव टॉक्ड हिम, मैं उससे बात करती, पास्ट की, कि माइकल तो जा चुका है, मैं पास्ट के बारे में बता रही हूँ, यदि मैं भी माइकल से मिलती ना पार्टी में तो उससे बात करती। लेट अस हैव वन मोर एग्जांपल, इफ इट हैड रेन्ड लास्ट वीकेंड, देखिए लास्ट वीकेंड यानी पास्ट की बात बता रही हूं मैं, कि यदि लास्ट वीकेंड में बारिश हुई होती, आई वुड हैव स्टेड एट होम, मैं घर पर रुक जाती, लेकिन बारिश नहीं हुई तो मैं घर पे नहीं रुकी। इट मीन्स टोटली इमेजिन कर रहे हैं और बता रहे हैं जो हो ही नहीं सकता, दैट विच इज नॉट पॉसिबल, विच डिड नॉट हैपन इन द पास्ट, जो पास्ट में हुआ ही नहीं, ना बारिश लास्ट वीक हुई ना हम अपने घर पर रुके। सो व्हाट इज द रूल ऑफ दिस थर्ड कंडीशनल, इन द इफ क्लॉज वी यूज्ड पास्ट परफेक्ट, had पास्ट परफेक्ट में यूज had आपको पता होगा, and in the main clause we use would plus have plus past participle, isn't it? In the if clause we used past perfect, देखिए I had won a lottery, had, it is the past perfect, and would have, it is the, according to the rule we have used would have plus past participle, buy, bought, third form of buy.
I had seen Michael at the party. I would have talked. Talk, talked, talked. Past participle is there. Here again, we would have stayed at home. Stayed. Past participle. Stay, stayed, stayed. I think this conditional sentences are clear to you. Let us have some exercise, isn't it? Fill correct forms of the verb. If babies dash hungry, comma they dash be or cry. अब देखिए तो ये सबसे पहले हम चेक करेंगे कौन सी कंडीशनल है. जीरो है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. ये देखिए, इफ बेबीज हंग्री, यदि बच्चे भूखे होते हैं वो रोते हैं, तो ये साइंटिफिक ट्रूथ है, ये जर्नल ट्रूथ है, या फ्यूचर में, पास्ट में अगर हम बात करें बच्चों के बारे में, तो दिस इज प्रोबेबल कंडीशन. जर्नल ट्रूथ इज देयर, यदि बच्चे वास्तव में भूखे होते हैं वो रोते ही हैं, इट मीन्स इट इज जीरो कंडीशन. तो हम क्या यूज करेंगे इसमें? In zero condition, what was the rule? In zero condition, we use simple present in the if clause, and in the main clause we also use simple present. तो if babies यहाँ पे plural है, और बी की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं फैमिली में, बी की फैमिली में कौन कौन होती है? इज, आर, एम. तो बी के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे आर, बिकॉज बेबीज आर देयर. ओके, आर. इफ बेबीज आर हंग्री, दे, again plural number, cry. Check, is cry, yani we are right. Now let us one more sentence. If you dash 2 and 2, it dash 4. Check which conditional is there. If you dash, यदि हम 2 और 2 को जोड़ते हैं तो 4 होगा. तो आप देखिए, सोचिए, जस्ट थिंक कि ये साइंटिफिक ट्रुथ है, सही है बात ये. अगर हम दो और दो को जोड़ेंगे 4 ही होगा, 5 नहीं होगा, यानी इट इज प्रोबेबल कंडीशन इज देयर. कौन सी कंडीशन हुई? जीरो कंडीशनल सेंटेंस इज देयर. तो जीरो कंडीशन का कौन सा रूल होता है? प्रेजेंट इन इफ क्लॉज एंड प्रेजेंट इन द मेन क्लॉज. तो हम एड्स करेंगे? नो, बिकॉज यू इज देयर, प्लूरल इज देयर. तो इफ यू एड 2 and 2, it becomes 4 because it is singular number. तो हम इसमें s और es लगाते हैं. Let us check. Add becomes, if you add 2 and 2, it becomes 4. Now one more sentence. If he has temperature, यदि उसको बुखार होता है. आप देखिए यहाँ पे आपको टेंस से क्लियर भी हो जाएगा कौन सा टेंस चल रहा है ये. इफ ही हैज टेम्परेचर, वी डैश हिम टू द डॉक्टर. बताइए कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है? यदि उसको बुखार हुआ ना, तो हम उसको डॉक्टर के लेके जाएंगे. तो इट इज प्रोबेबल, लाइकली टू बी हैपन, ऐसा हो सकता है. तो इट इज कौन सी कंडीशन हुई है? फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, राइट. यानी कि फर्स्ट कंडीशन का कौन सा रूल है? in the if clause we use simple present, and in the main clause we use future will. Okay, the sentence will be, if he has temperature, we will take him to the doctor. Let's check. Will, take. Another example. If I were you, वर से आप समझ जाइए, हम इमेजिन कर रहे हैं, यदि मैं प्रिंसिपल होती, यदि मैं डॉक्टर होती, तो इमेजिन कर रहे हैं. इमेजिन किस में आता है? इमेजिन या तो हम सेकंड में यूज करते हैं या फिर थर्ड में. लेकिन थर्ड में तो हमारा पूरा का पूरा पास्ट में जाता है. आंसर भी पास्ट का, क्वेश्चन भी पास्ट का. तो लेट अस चेक. इफ आई वर यू, लेकिन यहाँ पे वर आ रहा है, यानी ये सेकंड कंडीशनल ही है, क्योंकि थर्ड में हम हैड यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट. तो आप समझ जाइए, तो इट इज second conditional sentence. Second, what is the rule of the second conditional? In the if clause we use simple past, and in the main clause we use would. Okay, so if I were you, I would never decline such offer. Let us check the answer. Would never decline. One more sentence. If
he had asked me, देखिए had आ रहा है, यानी ये हमारा सेकंड भी हो सकता है और थर्ड भी। तो अब हम इसमें क्या यूज करेंगे, would have और would। चेक, इफ he had asked me, यदि उसने मुझसे कुछ पूछा होता, I dash him a pen, I would give him a pen or I would have given him a pen. Dear students, both are correct here. क्योंकि यदि हम इसको हम इमेजिनरी मानते हैं कि पास्ट में मैं उसको पेन दे देता और फ्यूचर की बात करते पेन देता, तो बोथ आर राइट। तो इफ ही हैड आस्क्ड मी, आई वुड हैव गिवन हिम अ पेन और आई वुड गिव हिम अ पेन। ओके, I would have is also right, but from my side, would is also there. Okay. Now one more exercise is there for you. In these sentences, you have to identify the conditional sentences. कि ये कौन से conditional sentences हैं? देखिए, if I knew where he lived, he would go and visit him. Just check. If I knew, पूरा देखिए पास्ट टेंस जा रहे हैं, जीरो तो हमारा है नहीं, ठीक है। अब हम पता करेंगे सेकंड है या फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में कोई हो सकता है। अब चेक कीजिए, वुड आ रहा है, वुड हमारा किस में यूज होता है, सेकंड कंडीशन में। प्लीज कीप दिस थिंग्स ऑन योर टिप्स दैट वुड इज यूज्ड इन सेकंड कंडीशनल एंड वुड हैव इज यूज्ड इन थर्ड कंडीशन। तो इफ आई न्यू वेयर ही लिव्ड, यदि मुझे पता होता वो कहाँ रहता है, मैं वहां जाता। मैं प्रेजेंट में आपसे बता रही हूँ, यदि मुझे पता होता कि भावना मैम कहाँ रहती हैं तो मैं उनके पास चली जाती। फ्यूचर की बात बता रही हूँ मैं आपको, तो नहीं, इट इज सेकंड कंडीशन अनरियल, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था वो कहाँ रहती है तो मैं नहीं गई। ओके, वन मोर सेंटेंस, द एप्पल्स विल राइपन मोर क्विकली इफ द वेदर इज गुड। आप देखिए विल आ रहा है, यानी कि इट इज प्रोबेबल कंडीशन, हो सकता है भाई। ये जर्नल सिंपल सी बात है कि यदि अच्छा सीजन हो, वेदर अच्छा हो, तो एप्पल ढंग से राइपन हो जाते हैं। तो विच कंडीशनल सेंटेंस इज देयर, इट इज फर्स्ट कंडीशन, रियल सिचुएशन इज देयर। Had I been you, I would not have kept quiet. इट इज वेरी क्लियर। देखिए वुड हैव आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, यानी पास्ट पार्टिसिपल आ रहा है। इधर आपके मेन क्लॉज में आपकी वो आ रहा है, सॉरी इफ क्लॉज में हैड आ रहा है, तो इट इज कौन सा हुई, थर्ड। थर्ड कंडीशंस रेफर्स टू द पास्ट, ये पास्ट के बारे में बता रहे, वुड हैव। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।